रेरा रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने से पहले मेट्रो कनेक्टिविटी जो एक बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ नोएडा एक्सटेंशन में बनी हुई थी, अब वो दोबारा से डिले हो गई है टीपीआर रिजेक्ट होने की वजह से। एज अ बायर मेरी रीसेल और मेरी रेंटल यील्ड्स पर क्या फर्क पड़ेगा इस न्यूज का? डू यू ऑनेस्टली थिंक देयर इज अ ओवर सप्लाई रिस्क इस एरिया के अंदर? एंड अगर वो रिस्क है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं? एंड बिकॉज ऑफ सम इशू या कुछ भी ऐसा हुआ, दिस प्रोजेक्ट गेट्स डिलेड। आई एम अ बायर जिसने 3 करोड़ रुपए लगाए और ये प्रोजेक्ट डिले हो गया, एंड यू आर स्टिल द एवीपी ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप, जिसने आप मेरे को बोला कि यश ट्रस्ट मी, बाय दिस प्रॉपर्टी, बाय दिस प्रोजेक्ट, आपकी जितनी नीड्स हैं वो यहाँ फुलफिल हो रही हैं, एंड आई डोंट थिंक कोई और बेटर प्रोजेक्ट आपके लिए। और आपकी बातों में मैंने विश्वास करा और मैंने साइन करे, पैसे दे दिए, और आज ये डिले हो गया। या फिर ये ऐसे नहीं होना चाहिए? लेट्स सपोज कि कल को अगर आपका ये प्रोजेक्ट है पूरा सोल्ड आउट नहीं है, दिस इज अ क्वेश्चन आई थिंक सो मेनी पीपल वुड बी हैविंग इन देयर ओन सेल्व्स के in my whole experience of business development, I have sat across buyers from every level. That has taught me how a carefully chosen word, a perfectly timed pause, and a beautifully lit site office can make you buy something which you never intended to. I have seen this process from inside. I have been there and I know what it feels to be in that particular place. That's why we started Orange Advisors. Orange Advisors hold more than 3 decades of real estate experience in this region. Here we have seen projects launch, delay, deliver, and in some cases disappear. We know this market on the ground reality and not the spreadsheet version. This channel exists for one reason: to bring the most important people working in this industry on camera and ask the questions which buyers are either too polite or too intimidated to ask. And at the end, to put you in that situation to draw your own conclusions with the right and informed information. No promotions, no brochure answers, just the real honest advice. So, this is episode 1, and I'm glad to introduce our first guest who comes from a very recognizable names in this corridor. Welcome, Mr. Tarun Singh, AVP Sales VVIP Group. Welcome to Orange Advisors. Thanks a lot. Thank you so much. Okay. So, before we start this podcast, Pele, I would like to learn something about you. So, how did you end up in real estate sales? So, was it like कि plan था या फिर life लेके आ गई? No. See, into real estate, nobody plans to come into real estate actually. There are so many bankers, there are so many people from hospitality into this industry. And similarly, I used to work for Transport Corporation of India. I used to work for Airtel. We did a lot of projects in passive telecom infra. Okay. And then we landed into electrical infrastructures. I was with Capital for a very long time, and then some of my acquaintance, they got me introduced to one of the developers. So it was a very casual meeting over the drinks in the evening, way back in 2012. So he gave me an offer 2 years before I joined real estate, before I landed taking his offer, accepting his offer too. So, and then after his subsequent pursuers, I ended up joining this organization in 2014, which had projects in Noida, Greater Noida, and Yamuna Expressway Industrial Development Area in that times of 2014. So that's how I joined, landed into this industry due to my personal relationships, maybe with the developers. So over a decade, you are saying ki you are into this real estate industry. Yeah, now it's more than a decade that I've been into this industry. And I started off with Noida. Okay. So in sector 45, we sold ultra luxury group housing at that time. Okay. Then we sold out group housing in middle income group at Pari Chowk. And then Okay. we sold out a 125 acre of township where we sold out around 1450 odd plots in a less than a span of an year's time. Okay. The whole township was sold out. So these were the project
I kicked start with, and then I switched to a developer which was based out of Gurgaon. So Okay. right from Noida, I went to Gurgaon. Okay. Then there we sold ultra luxury again in sector 32 of Gurgaon. Then I moved to a very large listed developers where we sold again ultra luxury into areas of Gurgaon and West Delhi. Gurgaon and West Delhi. West Delhi. Okay. And then recently, I think an year's time ago, I joined VVIP Group, and Okay, today we are okay. So sitting across table. your life in a nutshell in real estate, I would say Gautam Budh Nagar. You have explored every part of Gautam Budh Nagar till now, Across plus NCR, I would say, Gurgaon. yeah, Gurgaon. See, to any real estate professional, is the Hmm. Mecca Medina for real estate developers, Hmm. Gurgaon. So I've been to that market also. Then I explored Delhi as well. We did projects in West Delhi, and then obviously the ever-growing hub of NCR, Hmm. the Noida, Greater Noida, Yamuna Expressway Industrial Development Area. So like जैसा आपने बताया कि आप 2014 से इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, आपको मार्केट के अंदर क्या शिफ्ट या क्या डिफरेंस दिखता है कि 2014 के अंदर मार्केट वाज लाइक दिस, बायर्स की ये एटीट्यूड होता था, या फिर ये बायर्स को पता होता था कि आप बायर्स इतने नॉलेजेबल होते थे, या फिर 2025 में अब बायर्स के अंदर ये चेंज आया है? तो बायर पर्सपेक्टिव आपके एंड से क्या चेंज आपको लगता है? See, buyers today, buyers are very much aware, very much informative, and post era means after 2016, I think there is a paradigm shift that has happened to real estate market, real estate industry as whole across country. People are more aware. They're more having information from across platforms through digital platforms, through various agencies that government has set up, right? Today the brokers also cannot misguide, which all used to happen way back in 2014-15 till the RERA was introduced. ओके, मतलब मार्केट हैज डेवलप्ड फॉर देयर एंड एज वेल, उनके See, एंड पे भी कुछ पॉजिटिव। customers have become so informative. They can grill you if you try to misguide them. They in turn now will grill you. Earlier, back in 2014-15, if I have to recall, people were mostly guided by channel partners only. What they assured them, what they committed to them, they used to follow those lines only because they didn't had any media, any means of cross checking those parameters, those informations. But now everything is pre loaded on RERA website. Whatever commitments your channel partner, your developer is giving you, you can always cross check, and you can always see to the details of every parameter, every critical aspect of the project. सो तरुण जी, यू हैव बीन लॉन्ग इन दिस इंडस्ट्री, लाइक डेकेड से ज्यादा का आपका एक्सपीरियंस है। आई जस्ट वांट टू आस्क, हैव यू एवर हैड अ मोमेंट व्हेन यू पर्सनली फेल्ट कि यार दिस इज नॉट राइट, बी इट अ डील, बी इट अ सिचुएशन, या कोई भी चीज थी जब आपको वो मोमेंट फील हुआ कि यार ये सही नहीं हो रहा, या फिर ये ऐसे नहीं होना चाहिए था? I don't find, see, by grace of God, I have been with the developers who have always delivered the projects. Being an investor, I have been into such fix where I can see that the broker and the developer employee, they basically misguided me. And now I can put myself into their shoes that what they would be feeling at that moment of time when they were dealing with me. So I had a very bad experience with some developer where they knew that this would not build up, they would not be delivering, but I paid off good amount of money to them, and it was stuck for a very long period of time with them, and then I had to struggle a lot to get my money back from them. So I can project, I can see that what challenges they would be going through, yeah, what they would be feeling through. Everyone has to go through their own fights. Everyone goes through so much of turbulence in their own lives. They have to go through those moments. Nobody does that intentionally, but it happens by virtue of time. So, but by grace of God, I said I was blessed that I didn't do anything fishy, anything which could have landed me thinking about those things that you're talking about. So thankfully, means I have been with those developers only who have always delivered on time and who has always
even delivered the quality that they have promised through their brochures, through their commitments. ओके, बट कभी ऐसा हुआ है कि जैसे लेट्स सपोज, लेट्स टॉक अबाउट वीवीआईपी की अभी मेरी कोई प्राइसिंग चल रही है एंड यू नो कि हम दिवाली पे कोई ऑफर लेके आने वाले हैं एंड दिवाली अब से 1 महीने बाद है। आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ एंड यू आर लाइक, आपने मेरे से बोला हो एज अ पर्सन, एज एन एवीपी सेल्स, आपको पता है अगर आपकी आज ये बुकिंग क्लोज होती है तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। बट आपने क्या मुझे ऐसा बोला है कि सर 1 महीने बाद लेना, 1 महीने बाद हमारा ऐसे ऐसे ऑफर आने वाला है और आपको इतने लाख का भी बेनिफिट मिल सकता है। तो हैव यू एवर अपफ्रंट सेड टू अ बायर कि नहीं सर अभी रुक जाओ, ये राइट टाइम नहीं है, राइट टाइम आने वाला है? नहीं, नहीं, नहीं. See, in real estate, the time is money, because you never know that what lies after this moment of time. आज आप जो डील कर रहे हैं ना, जितना जल्दी आप उसको कंक्लूड करेंगे, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू. आई ऑलवेज गाइड माई इन्वेस्टर्स, माई चैनल पार्टनर्स, माई कस्टमर्स, कि जो डील आप कल करने वाले हैं सर, आप उसको आज ही कंक्लूड करिए. बिकॉज कल हम लोग प्राइस बढ़ा दें, या फिर कल मार्केट के कुछ डायनामिक्स चेंज हो जाएं, कल को कोई और स्कीम ऐसी लॉन्च हो जाए. मेरी स्कीम लॉन्च जो मैं दिवाली पे करने वाला हूँ, पता पड़ा उससे पहले गवर्नमेंट ने कोई नई स्कीम लॉन्च कर दी, कोई नया कॉरिडोर अनाउंस कर दिया, कोई नया एयरपोर्ट अनाउंस कर दिया, कोई नया रोड कॉरिडोर कर दिया. वो आपकी इन्वेस्टमेंट को कहां से कहां ले गया. तो इट्स ऑलवेज गुड फॉर एनी इन्वेस्टर टू एंटर एट अर्लीस्ट एज पॉसिबल इनटू एनी प्रोजेक्ट, एनी इन्वेस्टमेंट across real estate market. सो मूविंग फॉरवर्ड, डिस्क्राइब वीवीआईपी एड्रेस इन वन ऑनेस्ट लाइन। कि मैं कोई क्लाइंट नहीं हूँ, कोई इन्वेस्टर नहीं हूँ, मैं और आप अभी पार्क में मिले हैं, मैं और आप दोस्त हैं जो ऐसे जॉगिंग पे जाते हैं, और आपको मुझे वन लाइन में डिस्क्राइब करना है कि व्हाट इज वीवीआईपी एड्रेसेस, तो हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? डिटेलिंग से भरा, इस तरीके की स्पेसिफिकेशन से भरा, इस तरीके की फीचर्स लोडेड प्रोजेक्ट, आई वुड से आई हैवंट बीन थ्रू एनी सच थिंग. बिकॉज सी, कहीं पे अगर हम कुछ दिया करते थे ना, तो कुछ रोक लिया करते थे, कि ओके। किसी की एवज में कुछ और दे दिया. यहाँ पे आप ये समझो कि दोनों हाथ खोल के डेवलपर ने आपको जिस तरीके की प्रोजेक्ट लाइन आपको ऑफर करी है, दैट इज मैचलेस. मैं कहता हूँ कि जितने ब्रांडेड रेजिडेंसेज आजकल मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन में अगर आप जाओगे, जस्ट आपने किसी ब्रांड से एसोसिएट कर लिया, दैट डजंट मेक दैट प्रोडक्ट एज गुड एज द ब्रांड इज. वो आप जब उसकी रेरा वेबसाइट पे जाके स्पेसिफिकेशन खोल के देख लोगे, तो आपके सारे जो अरमान है उन पे पानी फिर जाएगा. वहीं पे हमारा जो प्रोजेक्ट है, जिस तरीके के लेविश आपको स्पेसिफिकेशन हम लोग दे रहे हैं, 10-10 फीट के डेक, 12 फीट की सीलिंग हाइट, आप समझो इटालियन मार्बल की फ्लोरिंग, 9 फीट के दरवाजे, डबल डोर की एंट्रियां, ये सारे फीचर जो है ना, उसके बाद जो क्लब हाउस की स्पेसिफिकेशन, उसमें तो आप डिटेलिंग में जाएंगे, देयर इज वो सो मच अभी टू नो. हम आपकी ये वाली डिटेलिंग पे भी नेक्स्ट पार्ट में वी विल डिस्कस। बट हाँ, जो आंसर हमें चाहिए था एक लाइन वाला, तो इट इज अ वेरी पॉजिटिव आंसर जो आपने एकदम अपफ्रंट एक वर्ड में जो आंसर इसका दैट्स किया। अ मैचलेस स्टफ भाई. ओके, अब थोड़ा सा वीवीआईपी के बारे में आगे बढ़ते हैं। एक ऑनेस्ट स्कोर कार्ड चाहिए। अभी तक वीवीआईपी के कितने प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, कितने प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुके हैं, और जो ये डिलीवर प्रोजेक्ट्स थे उसमें से कितने डिले हुए हैं? Right. जस्ट द So नंबर्स। these are all 9 projects that we have delivered. ओके। है ना. 7 प्रोजेक्ट हमारे राजनगर एक्सटेंशन में है, जिसमें एक शॉपिंग मॉल है बाय नेम ऑफ वीवीआईपी स्टाइल. 6 हमारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं अक्रॉस राजनगर एक्सटेंशन ओनली. 2 हमारे प्रोजेक्ट हैं जो नोएडा बाउंड्रीज में पड़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर में पड़ते हैं, वीवीआईपी होम्स एंड वीवीआईपी मेरिडियन. 10वां प्रोजेक्ट हमारा अभी चल रहा है वीवीआईपी नमा नाम से. दिस इज द 11th प्रोजेक्ट, वीवीआईपी एड्रेसेस. देयर इज अ 12th प्रोजेक्ट ऑन यमुना एक्सप्रेसवे इन सेक्टर 22 विच इज ऑलरेडी सोल्ड आउट. तो ये 12 प्रोजेक्ट की हमारी पूरी रूपरेखा है अभी तक. अब आपने बोला कि इसके अंदर कितने डिले है. सो बाय ग्रेस ऑफ गॉड एंड ड्यू टू आवर engineering expertise, I would rather say, because हमारे जो चेयरमैन सर हैं, हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर सर हैं, हमारी जो पूरी मैनेजमेंट है, दे ऑल आर इंजीनियर्स बाय देमसेल्व्स. सो ओके। उनकी एक्सपर्टीज ही इंजीनियरिंग है. तो वी आर वेरी मच प्रोडक्ट सेंट्रिक पीपल. हम लोगों का मेन फोकस इज हाउ टू डेवलप समथिंग
landmark, something remarkable, something different, and how to deliver it on time. हमारा फोकस ही ये रहता है, बिकॉज मैनेजमेंट की फोकस वही है. सो बारिंग वन प्रोजेक्ट, एवरी प्रोजेक्ट वॉज डिलीवर्ड ऑन टाइम. एक प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले जरूर हुआ, Which one? था वीवीआईपी होम्स में. और Okay. वीवीआईपी होम्स में होने की वजह क्या थी, दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज that project was in conjunction with the co-developers. Okay. That co-developer had to meet some compliances to the Hmm. state government. They did not do, they lingered on. उसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ, but due to the seamless communication we had with our buyers, investors, customers, all our customers, all our allottees now feel pride that they are a proud member of our this VVIP family. They all are now staying happily in that project also, which was delayed. But yes, everything is well which ends well. So everyone feels so much of pride that because of that communication, that we didn't had that communication lag between us and our allottees. So everyone is pacified, everyone is a happy. ओके, तो आपके कहने का मतलब है कि आपके कस्टमर्स दे फील हैप्पी, मतलब ऐसे अनअपडेटेड टाइप फीलिंग उनके अंदर नहीं रहती कि यार ये तो क्या हो रहा है हमारे साथ, हमने तो पैसा लगाया था. सो दे आर एट द एंड दे आर सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज दैट वीवीआईपी ग्रुप प्रोवाइड्स. जब ये सारी चीजें हुई, उनका सिर्फ एक ही हमारे को कम्युनिकेशन था, इंस्ट्रक्शन था टीम को, कि आप लोगों को सारी जो कम्युनिकेशन है वो कस्टमर तक नीचे डाउन द लाइन, एवरी ग्रास रूट person should know that what is the cause and by when it is ought to be resolved. वो सारी जो समस्या अभी आई है, जो ऑब्स्टेकल आई है, वो कब तक रिलीज हो जाएगी, ये भी आपको उनको बताना चाहिए. तो इसलिए आई थिंक सब लोगों को वो सीमलेस कम्युनिकेशन हुआ. दैट्स वाई कभी वो लैग बीच में नहीं आया. ओके, साउंड्स ओके. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, हम वीवीआईपी के थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं. सो मोर देन 30 years वीवीआईपी ग्रुप इज इन द मार्केट. तो इनिशियली वीवीआईपी वाज नोन फॉर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. आपका एसटीपीज हो गए, वाटर ट्रीटमेंट्स हो गए, देन आपके रोड हो गया, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सारी चीजें वीवीआईपी पहले करता था. एंड नाउ यू आर सेलिंग एन अपार्टमेंट जो कि 3 करोड़ प्लस की प्राइस रेंज में कहीं ना कहीं आता है. सो मी एज अ बायर, हाउ वुड आई बिलीव कि जो कंपनी ड्रेनेज सिस्टम बिल्ड करती थी, आज वो लग्जरी प्रोडक्ट्स भी बिल्ड करके दे सकती है. तो जब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स किया करते थे, तो तब हमको हाउ टू बिल्ड थिंग्स, we had a fair idea about that. So that's why we came into real estate also, because it's all about building. हमने जो भी प्रोजेक्ट किया, हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था वीवीआईपी एड्रेसेस राजनगर एक्सटेंशन, जिसके अंदर हमने राजनगर एक्सटेंशन का सबसे बड़ा साइज 6200 स्क्वायर फीट किए ड्यूप्ले पेंट हाउसेज हमने वहां पे बनाए, डिलीवर किए. उसके बाद हमने जितने प्रोजेक्ट किए, वो सारे प्रोजेक्ट पिछले वाले से कुछ बेहतर थे. So we were creating benchmarks after benchmarks through one after another project. जो लास्ट हमारा प्रोजेक्ट अभी चल रहा है NH24 पे, which is now NH9, VVIP Namha, that is also a luxury project, but this project particularly is into ultra luxury segment, because के we have been following this path that we have to build something better than before. So taking into consideration our legacy, we have been into this industry like that only, that our next project was better than before. So now we have reached to this 3 crores, 7 crore segment maybe, because the highest size that we are selling right now also is 7 crore rupees. Okay. After this project, we'll be building something beyond also. Means we are planning for something to launch around 15 crores also. Okay. So this is the path that we are following, that we have to build something beyond that we already built. So based on that thinking, that legacy and that I think direction, we have landed on to this milestone today, that हम लोग 3 करोड़ से स्टार्टिंग वाला एक प्रोडक्ट, बल्कि रादर देन 3, इट्स ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ जो हम आज की डेट में बेच रहे हैं यहाँ पे. तो हम 3.5 करोड़ का प्रोडक्ट आज बेच रहे हैं till 7, but next would be 15. So that is how we have been following our path like. So ये तो एक जर्नी का एक जस्ट एक पार्ट है
कि हमने पहले 30 लाख से शुरू किया, फिर 50 पहुंचे, 50 से हम लोग 80 पहुंचे, 80 से 1 करोड़, फिर हमने 2 करोड़ तक पहुंचे, अब 3 से पहुंचे हैं, 3 से 7 तक यहाँ बेच रहे हैं। अब 7 से हमारी जो प्रोजेक्शन अगली प्रोजेक्ट की आपको दिखेगी धीरे आने वाले समय में, वो आपको हमारा लगभग 12 से 15 करोड़ की टिकट साइज का भी आपको मिलेगा। सो दैट्स द जर्नी एवरीबॉडी फॉलोज, कि आप कुछ बेहतर करने की जब इच्छा रखते हैं तो यू गो लाइक दिस ओनली। ओके। ओके, तो अब हम मूड को थोड़ा सा हार्ड सेट करते हैं। अब लेट्स मूव टुवर्ड्स द फाइनेंसेस ऑफ वीवीआईपी। थोड़ी सी मैंने भी रिसर्च करी है, मेरे हाथ में रिसर्च पेपर है उसका। तो लास्ट ईयर बीएसई फाइलिंग्स में वीवीआईपी इंफ्राटेक के जो प्रमोटर शेयर्स हैं वो प्लेज किए गए थे। एंड मी एज ए इन्वेस्टर जो 3 करोड़ रुपए आज आपकी इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर लगाता है, सो व्हाट डज दिस सिग्नल अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी? सी दैट वाज अ प्लेजिंग इज नॉट अ बैड थिंग भाई। उसके अंदर एक तो बहुत मार्जिनल सा वो प्लेजिंग है ना, एंड व्हेन यू हैव टू मेक अरेंजमेंट्स ऑफ फंड्स, तो यू टेक लोन फ्रॉम मार्केट। हमारे किसी प्रोजेक्ट पे कोई प्रोजेक्ट लोन नहीं है, आप ये भी देखेंगे। सो दिस इज अ वेरी मार्जिनल थिंग विच कुड हैव हैपेंड ड्यू टू द कमिटमेंट्स दैट वी हैव मेक टू आवर कस्टमर्स। हमारे लिए हमारी डिलीवरीज आर इम्पॉर्टेंट, come what may, we will make arrangements, but we are committed towards our deliveries towards our customers। तो उसके लिए हम कुछ भी करेंगे, but yes, हम deliveries on time करेंगे, and that is something which makes us different from the rest of the developers also। Okay, so you just told us about the share pledging. ठीक है, I got your answer and our viewers also got the answers. बट ये मुझे कैसे पता लगेगा कि जो आपकी कंस्ट्रक्शन फंडिंग है वो रिंग फेंस्ड है? लेट सपोज कि कल को अगर आपका ये प्रोजेक्ट है पूरा सोल्ड आउट नहीं है, अगर कल को ये पूरा सोल्ड आउट नहीं होता तो क्या सोल्ड आउट होने पे ही इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डिपेंडेंट है? कि अगर आप पूरा सोल्ड आउट नहीं कर पाते हैं एनी हाउ, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप प्रोजेक्ट पूरा भी नहीं कर पाओगे? दैट आई वांट टू नो। एक व्यूअर भी ये जानना चाहता है कि आर यू सो मच कैश रिच एंड योर फाइनेंशियल्स आर सो हेल्दी कि अगर लेट सपोज आज ही बुकिंग बंद हो जाती है कि कोई बुकिंग आपकी पोजीशन तक हुई ही नहीं, तब भी आप इस प्रोजेक्ट को पोजीशन तक लेके जाएंगे और पूरा का पूरा जिस तरीके से आपने सोचा है उस तरीके से इसको डिलीवर करेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन, या कोई भी चीज इसमें से माइनस ना करी जाए? बहुत अच्छा सवाल आई थिंक यश भाई आपका है। So many of our viewers, of our investors would be looking up to this question। See, post RERA, this is very much ensured by the government itself कि जो भी पैसा अकाउंट में आ रहा है, पहली बात तो वो सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के लिए यूज होगा, बिकॉज 70% ऑफ द अमाउंट हैज टू बी यूटिलाइज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ओनली। दूसरी चीज ये कि आपने एक सवाल पूछा कि अगर वो उतना क्वांटम ऑफ मनी यू डिड नॉट रीच टू आफ्टर एग्जीक्यूटिंग सेल्स ऑफ दैट प्रोजेक्ट, तो कैसे आप प्रोजेक्ट को वो करेंगे अगर उतना सेल आप नहीं कर पाते जितना कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा चाहिए। सी पोस्ट रेरा, अगेन आई विल गिव दिस क्रेडिट टू रेरा ओनली, कि आपको एनी हाउ यू हैव टू डिलीवर द कंस्ट्रक्शन बाय द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। अगर हमारी टाइमलाइन 2029 की है, तो वी हैव टू एंश्योर कि मेरा 2029 तक एनी हाउ यू हैव टू अरेंज फंड्स बाय योर ओन, बाय मार्केट, or by any means, but you have to complete your project। Although by grace of God we are blessed enough that we are, by the first year only, we are almost sold out in this project also, so there are no such hassles that we expect into this project। And because 70% is uh, expected to be invested in the construction of the same project, it would be easily achieved, it has no hitches to be observed for। ओके, नहीं, आई गॉट योर पॉइंट कि आपने इतनी सेल्स कर दी है कि जो आपको पता है कि हाँ इतना पैसा आ सकता है। आई एम जस्ट हैविंग दिस क्वेश्चन कि लेट सपोज आप उतनी अगर सेल्स नहीं भी कर पाते, तो क्या वीवीआईपी ग्रुप के पास उतने कैश का सपोर्ट है, इतने पैसे का सपोर्ट है कि अगर कोई बुकिंग्स नहीं भी होती है तो भी अगर वो कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो उसे फाइनल स्टेजेस तक ले जा पाए विदाउट एनी सेल्स? मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या उनके पास वो फाइनेंशियल बैकिंग है वीवीआईपी के पास कि वो इस चीज को एंड तक लेके जा सकते हैं? बहुत अच्छा पूछा आपने, एकदम वो जर्नलिस्ट की तरह। अच्छा। तो आपने जो सवाल किया ना, मैं इसका दो भागों में आंसर देता हूँ। ओके। फॉर एनी डेवलपर हु इज अ लिस्टेड डेवलपर, कोई भी लिस्टेड डेवलपर अगर है
they are not only accountable to RERA, to their customers, but they are also accountable to SEBI. No developer can afford to default on the deliveries of the project. RERA रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने से पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस में ये चेक कर लेता है कि वेदर दिस डेवलपर विल बी एबल टू डिलीवर दिस प्रोजेक्ट इफ द सेल्स नॉट एग्जीक्यूटेड ऑल्सो. तो हैड द सेल्स नॉट बीन एग्जीक्यूटेड वुड दे बी एबल टू डिलीवर द प्रोजेक्ट. हमसे पहले ये डिलीजेंस रेरा करके बैठ चुका होता है, तब जाके वो रेरा हमको सर्टिफिकेट देता है. तो ये सवाल, तो आप ये समझ लीजिए कि हर वो डेवलपर जिसके पास रेरा है उसके पास उतना पैसा है कि वो उसको डिलीवर कर सकता है. इसमें आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सबके पास उतने फंड्स हैं. अगर रेरा ये देख लेता है कि इसके पास उतने फंड्स बैकअप में नहीं है तो वो रेरा ग्रांट ही नहीं होगा आज की डेट में. रेरा इज सो एम्पावर्ड इन टुडेज सिनेरियो. लेट्स टॉक अबाउट इफ आई शो अप टुमारो एट योर साइट. मैं अनअनाउंस्ड आ गया, मैंने आपको नहीं बताया कि तरुण जी मैं आने वाला हूँ या मेरी टीम आने वाली है, मैं एकदम से आ गया, तो मुझे यहाँ क्या देखने को मिलेगा एक्चुअल साइट पे? व्हाट वुड आई सी? The beautiful gallery you would be welcomed on, and then our class apart hospitality that you would be going through, this beautiful sample apartment. आप आइए, आप कभी भी, आपका स्वागत है, आप सैंपल अपार्टमेंट कभी भी देख सकते हैं. देन ऑब्वियसली आर कंस्ट्रक्शन, देयर इज अ कंस्ट्रक्शन गैलरी आउटसाइड. तो आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो हमारा जो फास्ट पेस पे कंस्ट्रक्शन माईवान चल रहा है, माईवान और सो एल्यूमिनियम फोमवर्क बेस जो हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी फास्ट पेस आपको देखने को मिलेगी. हर महीने अगर आप आएंगे तो आपको एक अलग ही चेहरा हमारी कंस्ट्रक्शन का दिखेगा कि यू ऑल्सो गेट सरप्राइज कि यार इतनी तेजी से चल रहा है. सो फंड्स, अगर इन केस यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट, तो आपको फंड्स अपने रेडी रखने पड़ेंगे बिकॉज we'll be delivering again before time this project also. ओके, सो इतना कॉन्फिडेंस है आपको वीवीआईपी के ऊपर कि हाँ ये टाइम से पहले इस वाले प्रोजेक्ट को भी डिलीवर कर देंगे? सी कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि हमारी कार्यशैली उस तरीके की है. हमारे चेयरमैन सर की विजन है एवरी प्रोजेक्ट शुड बी डिलीवर्ड ऑन टाइम बिफोर टाइम विद द क्वालिटी एंड स्पेसिफिकेशंस फीचर्स दैट यू हैव बीन कमिटेड फॉर. तो उनके विजन को मीट करने के लिए दैट इज आवर ऑब्लिगेशन दैट वी हैव टू मीट एंड वी विल डिलीवर. इसमें तो कोई संशय है ही नहीं. सो तरुण जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ पॉइंट जो कि बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है फ्रॉम बायर्स पर्सपेक्टिव एज वेल, जो आपके लिए मुझे रखना था. वी विल बी टॉकिंग अबाउट द लोडिंग फैक्टर. ओके. हाँ, ऑलमोस्ट नोबडी आस्क्स दिस डायरेक्टली. बहुत कम लोग इसको डायरेक्टली पूछ पाते हैं, लोगों के दिमाग में रहता है, पर कई लोगों को पता ही नहीं है क्या लोडिंग फैक्टर है. बस कोई लोग बता देते हैं कि मैं किसी प्रोजेक्ट पे गया कि उसका तो लोडिंग फैक्टर ज्यादा है. जस्ट बिकॉज मैंने सुन लिया, इसने बोल दिया लोडिंग फैक्टर ज्यादा है, तो मेरे दिमाग में आ जाता है अच्छा इसका ये ज्यादा है तो भी ये खराब प्रोडक्ट होगा या कुछ भी होगा. इस पे हम बात करेंगे. और पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो आई वॉज डूइंग रिसर्च, मैंने देखा जो आपका 3 BHK वाला साइज है उसमें 2955 स्क्वायर फुट का वो साइज है जो सुपर एरिया उसका, जिसमें से कि 1487 स्क्वायर फुट उसे कारपेट एरिया मिलता है. अगर मैं रफली इसका लोडिंग फैक्टर कैलकुलेट करूं तो 50% के अराउंड इसका लोडिंग फैक्टर हमारा आता है. तो मैं जो 12,000 12,500 पर स्क्वायर फुट के रेट पे अंदर आ रहा हूं, तो इसमें मैं इसका सुपर एरिया का और एक्स्ट्रा लगभग 30-35 लाख रुपए मैं एक्स्ट्रा भरता हूं जो भी इसके अंदर हमारा आता है. तो हाउ डू यू जस्टिफाई दिस थिंग एज अ बायर? आप किस तरीके से मुझे ये चीज बताएंगे कि व्हाई आर यू हैविंग दिस मच लोडिंग फैक्टर इन योर पर्टिकुलर दिस यूनिट? बहुत अच्छा सवाल है यश भाई आपका कि आजकल क्या, मैं वैसे पोस्ट कोविड एक सिचुएशन बोलूंगा वेयर पीपल स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर स्पेसेस टू ब्रीद आउट आल्सो. यू नो कि लोगों को सिर्फ घर के अंदर रहना नहीं है, उनको बाहर भी हवा चाहिए, उनको बाहर एक व्यू चाहिए, उनको बाहर की भी एक लाइफ चाहिए. अलोंग विद इनसाइड लाइफ दे वांट life beyond. So if people, if investors, if customers, they don't want to compromise on their lifestyle, I think they should start focusing beyond carpet areas. और अगर मैं कारपेट एरियाज की एक थंब रूल की बात करूं कि आज की डेट में जो दिल्ली एनसीआर के अंदर सुपर टू कारपेट का जो रेशियो है दैट रन्स अराउंड 41%. आप अगर कोई भी डॉक्यूमेंट उठा के हमारा देखेंगे कि व्हाट इज द कंटेम्पररी कारपेट एरियाज to super and saleable areas running these days is around 41%.
अब मैं अपने जो हमारा सैंपल अपार्टमेंट आपने बना हुआ है जो देखा है, 10 फीट की उसमें डेक है और लगभग 70 फीट की रनिंग बालकनी एक साइड है। सिमिलरली दूसरे साइड भी उसकी रनिंग बालकनी है। किसी भी अपार्टमेंट के अंदर 4 फीट के लगभग की बालकनीज रहती है, 3.5-4 फीट की। हम्म, मेरा लगभग 6 फीट का एरिया एक्स्ट्रा हो गया, 70 फीट की रनिंग बालकनी एक साइड हो गई। हम्म, आप अब उसको अगर मल्टीप्लीकेशन कर लें, लगभग 6 फीट का जो मैंने एक्स्ट्रा एरिया दिया इंटू 7, लगभग 420 स्क्वायर फीट बनता है बालकनी एरिया। बालकनी एरिया इन ओके, अपार्टमेंट जो कि 4600 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है। उसके अंदर 420 स्क्वायर फीट मैंने आपको एक ही साइड दे दिया, इतना ओके, दूसरी साइड भी है। ओके। दोनों साइड का मिला ले आप लगभग 20% एरिया हो गया। हम्म, उसको अगर आप टोटल में से उसको लेस कर लो, मेरी लोडिंग तो इनफैक्ट उससे भी कम आ गई। आप ओके। समझ रहे हैं जो मार्केट की धारा है 41% की, हम्म, मेरा अगर 49% का आप आज की डेट में सुपर टू मेरा कारपेट आप कैलकुलेट कर लेते होगे कि 49% की लोडिंग है, उसमें 20 और लेस कर लो आप। तो आप ओके, देखो फिर वेयर डू वी स्टैंड। सो पीपल शुड हैव दिस नाउ आउटलुक दैट दे शुड स्टार्ट लुकिंग बियॉन्ड। सिर्फ आपको कारपेट एरिया, वही कारपेट एरिया नहीं देखना विच लाइज अंडर योर रूफ, बट which is being provided to you in terms of lift lobby, which is provided to you in terms of extended decks that we are giving you, which adds up to that lavishness, that grandeur that you look for, that you deserve also. ओके। सो मतलब इन शॉर्ट अगर मैं देखूँ तो यू आर टेलिंग कि सिर्फ हमें ऑन पेपर कारपेट एरिया को ना देखते हुए आज के टाइम पर जैसे अगर कोई लग्जरी ले रहा है तो वो प्लस क्या मिल रहा है उसे लग्जरी में, वो चीज भी अगर बंदा देखे तो कहीं ना कहीं उस लोडिंग फैक्टर को आप जस्टिफाई तब कर पाओगे Correct. कि See, द लाइफस्टाइल यू आर प्रोवाइडिंग अलोंग विद द एरिया अंडर द रूफ। correct. See, कारपेट एरिया की डेफिनेशन तो हम आप चेंज नहीं कर सकते, हम्म, राइट? कारपेट एरिया की डेफिनेशन वही रहेगी जितने एरिया में आप कारपेट बिछा सकते हैं। हम्म, लेकिन क्या आप सिर्फ उसी एरिया में रहते हैं जिसमें आप कारपेट बिछा सकते हैं? हम्म, आप सिर्फ उस एरिया में नहीं रहते जिसमें आप कारपेट बिछाते हैं। देर आर एरियाज बियॉन्ड वेयर यू इवन फील लाइवली हम्म, अदर देन द कारपेटेड एरिया। हम्म, आप डेस्क में जब अपने सन सोकिंग करेंगे, अपने पेरेंट्स को सन सोकिंग कराएंगे, आप वहाँ पे अपना जिम्नेजियम का पूरा सेटअप करेंगे, जब वहाँ पे आप जिम करेंगे, जब वहाँ पे आप अपनी स्टार गेजिंग करेंगे, देयर आर सो मेनी एक्टिविटी, जब आप अपनी पार्टीज उस डेक में होस्ट करेंगे, देन आपको जो वैल्यू उसके अंदर से मिलेगी ना, देन यू विल रियलाइज दैट यू डिडंट गो फॉर दोज ट्रैप्स दैट पीपल आर फॉलोइंग फॉर इन दीज डेज। ओके, ओके। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। मतलब मुझे भी लोडिंग फैक्टर का एक इस तरीके का आंसर चाहिए था। अब मेरा भी थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव शिफ्ट हुआ है लोडिंग फैक्टर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये रियल एस्टेट को लेके। शायद इसका आंसर कहीं न कहीं आपने दे भी दिया है, बट और थोड़ा-सा अगर हम नीचे जाएँ, व्हाई डू रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स इन इंडिया डिले? क्या इनका मेन रीज़न है? क्या इनका मेन रीज़न बैड प्लानिंग है? क्या इसका मेन रीज़न ग्रीड है? या फिर देयर इज़ अ डीपर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इन आवर इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम, इन आवर रेरा सिस्टम, या जो भी हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, इसके अंदर कोई डिफ़ॉल्ट है, इसके अंदर कोई क्लॉज़ कुछ ऐसा है जो किसी डेवलपर के ऊपर इतना प्रेशर हिट करता है कि इसकी वजह से वो डिले कर देता है प्रोजेक्ट को, या उसको पैसे की उतनी सप्लाई नहीं मिल पाती? मतलब आपके हिसाब से व्हाट इज द वन बिग हिट रीजन जिसकी वजह से कोई प्रोजेक्ट डिले हो जाता है? सी, मेरे हिसाब से अगर कोई प्रोजेक्ट आज की डेट में डिले हो रहा है, तो उसमें सिर्फ डेवलपर की ही मैं भूमिका मानूंगा कि थोड़ा प्लानिंग रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। अदरवाइज वॉट एवर डिलेज, अगर जो इंसिडेंटल डिलेज रहते हैं वो सारे कंस्ट्रक्टिव डिलेज रहते हैं, उसमें कोई ना कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस उनके साथ हो जाते हैं जिसकी वजह से वो डिले करते हैं। इंटेंशनल डिले कोई नहीं करता, कोई डेवलपर करना नहीं चाहता, क्योंकि इतने हाई पेनल्टीज रेरा हैज इम्प्लाइड कि नो डेवलपर कैन अफोर्ड द एस्केलेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एंड द पेनल्टीज डिसाइडेड बाय रेरा। तो जो भी होते हैं वो अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस की वजह से हो सकते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं कोई सर्कमस्टेंस ऐसा आ जाता है जो कि उनके लिए भी एक नॉन नेगोशिएबल चीज हो गई कि वो भी उस चीज को नेगोशिएट नहीं कर पाए, एंड देन दे हैव टू फेस दिस। Correct. See, ओके। no developer now can afford to delay projects. हम्म, एंड नॉन डिलीवरी की तो बात ही आप हटा दीजिए, बट आप डिले भी करेंगे ना, तो हम्म, देर आर
high penalties to be levied on such developers. I think no developer wants to delay, because the policies have been devised in such a manner that nobody can afford also to Okay. delay, or to intentional delay की तो बात ही दूर है. It's only unforeseen circumstances, या कोई ऐसी कोई घटना किसी के साथ घट जाए डेवलपर के साथ, भगवान ना करे, कि उनको वो डिले हो जाता, इंसिडेंटली डिले हो गया. लेकिन कोई भी डेवलपर नहीं करना चाहेगा. और मुझे लगता है कि मार्केट, along with the RERA, market has also evolved, where such incidents are minimalistic in nature only. Okay, got your point here. Okay, so next question to you. अगर हम नोएडा एक्सटेंशन की बात करें तो लगभग 100 से 120 अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आज के टाइम पर यहाँ पर रनिंग है नोएडा एक्सटेंशन के अंदर. डेवलपर्स की बात करें तो सारे जितने भी बड़े डेवलपर्स हैं, गॉड्स है, एस है, एलडीको है, अब शोभा भी यहाँ पर आ चुका है, एंड ऑल ऑफ देम आर टारगेटिंग दैट लग्जरी बायर टारगेट सेगमेंट. सबके सब उसी को टारगेट कर रहे हैं. तो डू यू ऑनेस्टली थिंक देयर इज अ ओवर सप्लाई रिस्क इस एरिया के अंदर, एंड अगर वो रिस्क है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? आपने अगेन, आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन, कि वुड देयर बी एनी ओवरहंग इन्वेंट्री बीइंग लाइंग इन दिस एरिया ऑफ नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेट नोएडा कॉल. आज की डेट में भी अगर आप यश भाई उठा के देखेंगे ना, प्रोजेक्ट्स जो कि लॉन्ग पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे, प्री रेरा एरा के जो प्रोजेक्ट, दे आर ऑल्सो गेटिंग डिलीवर्ड. मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, यू वुड बी अवेयर ऑफ प्रोजेक्ट्स इन सेक्टर 1 के साइड में प्रोजेक्ट्स हैं, और जो हमारी सूरजपुर वाली रोड है उस बेल्ट पे हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बी अवेयर ऑफ. वो भी प्रोजेक्ट हो रहे हैं, और पीपल आर लुकिंग अप टू के मेरे को पोजीशन होके मिला नहीं, कि वो फिट आउट की पोजीशन में भी आ रहा है ना, तो लोग मूव इन उसमें कर जा रहे हैं, लोग उसके अंदर गृह प्रवेश कर जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि डिमांड है इतनी. यहाँ कोई प्रोजेक्ट खाली नहीं है. जितने प्रोजेक्ट यहाँ पे अगर डिलीवरी की स्टेज के आसपास भी है ना, भरा हुआ है वो प्रोजेक्ट. तो जितने प्रोजेक्ट अभी आ रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा जॉब्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं. इंडियाज लार्जेस्ट मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब इज कमिंग इन बोडा. इंडियाज लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब इज कमिंग इन बोडा. आप ये सोच रहे हैं, ये जो कंट्रीज लार्जेस्ट हब्स जो यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कॉरिडोर्स का ओरिजिनेशन पॉइंट इज बोडा. वहां से आप कैलकाटा पोर्ट को भी कर रहे हैं, आप वहां से गुजरात पोर्ट को भी टच कर रहे हैं. वेस्ट और ईस्ट में आपकी अप्रोच, मतलब पानी से भी आप जुड़ गए, आप रोड के द्वारा भी इतने सारे एक्सप्रेसवे से आप जुड़े ही हुए हैं, और रेल कॉरिडोर जो ईस्टर्न वेस्टर्न में आपको कॉरिडोर बता रहा हूँ, रेल से जो माल भाड़े की सुविधा यहाँ पे लोगों को मिल रही है, इंडस्ट्रीज को. देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज प्लानिंग टू कम इनटू दिस एरिया फॉर देयर एस्टेब्लिशमेंट्स. उसके बाद KP5 नॉलेज पार्क 5 के अंदर जिस तरीके का साइबर सिटी लाइक डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस ना, इट विल चेंज द फ्यूचर एंड पिक्चर ऑफ दिस ग्रेटर नोएडा वेस्ट. दैट्स व्हाई these all big brands of our country are targeting this area to have their own projects in this area, to take the advantage of that projected advancement happening in this area. Okay, so I got this oversupply wala answer. It's But still under supply. मैं तो ये कहूँगा अच्छा, कि you feel it is under supply? under supply, because right now also there are so many people, there are so many, कि IT इंडस्ट्री इतनी बड़ी यहाँ पे है, हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यहाँ पे काम कर रही है. ऑल दोज पीपल आर लुकिंग फॉर देयर अकोमोडेशंस. आज भी अगर कोई भी प्रोजेक्ट वहां पे डिलीवर होने वाला है, उसकी डिलीवरी से पहले लोग पोजीशन ले रहे हैं, फिट आउट पोजीशन के नाम पे वो पहले पोजीशन ले रहे हैं, बिकॉज पीपल आर लुकिंग आउट फॉर स्पेसेस टू सेटल आउट इन दिस एरिया. सो Okay. अभी भी दिस एरिया इज वेरी अंडर सप्लाइड. ऑफ लेटली दे स्टार्टेड टू पिकिंग इट अप, एंड आई थिंक दिस इज अनस्टॉपेबल. तो अगर हम अंडर सप्लाई की बात कर रहे हैं तो हम आज प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, बट डाउन द लेन जैसे अभी जितने भी लग्जरी वाले प्रोजेक्ट्स अगर हम देखें तो पिछले 2-3 साल में इस मार्केट को इंट्रोड्यूस हुए हैं ये सारे प्रोजेक्ट्स. इनको बनते बनते कोई 28, 29, 30 तक ये सारे डिलीवर होने चालू होंगे. तो 28, 29, 30 वाला जो हमारा एरा होगा जो नोएडा एक्सटेंशन में, आई गेस मैक्सिमम जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हैं वो तब डिलीवर हो रहे होंगे. तो डू यू थिंक उस टाइम पर जब ये भी सारे डिलीवर हो जाएंगे तब भी ये अंडर सप्लाई वाले मार्केट में रहेगा, या फिर तब एक सप्लाई और डिमांड का बैलेंस इसके अंदर रहेगा, या तब ये ओवर सप्लाई की तरफ चला जाएगा? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग. सी, आज की डेट में लैंड है ही कहाँ एक्सटेंशन के अंदर. सारे लैंड पार्सल आर सोल्ड आउट. कोई नए ऑक्शन आर नॉट प्लान्ड येट. कोई भी लैंड पार्सल्स ही नहीं बचे हैं, बिकॉज जो बचा है वो सारा या तो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, या रिजर्व फॉरेस्ट फार्मलैंड है, या फिर के कोई इकोलॉजी सिस्टम रिलेटेड एरियाज हैं. वो सारे सिर्फ एरियाज ही बचे हैं.
तो उन कोई ऑक्शन ही प्लान नहीं है, कोई लैंड पार्सल्स ही वेकेंट नहीं है, जितनी सप्लाई यहाँ पे है उससे ज़्यादा यहाँ पे डिमांड है। तो मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में दिस एरिया वुड बी अंडर सप्लाइड, ओवर डिमांडेड, क्योंकि इतने सारे प्रोफेशंस, इतने सारे प्रोफेशनल्स आर एक्सपेक्टेड टू गेट सेटल्ड इन दिस एरिया कि जितनी इन्वेंट्री है इट विल फॉल शॉर्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट मेक्स यू डिफरेंट? कि हमने ये बात कर ली है, इतने सारे यहाँ पर आ चुके हैं, बड़े बड़े नाम की हमने बात करी, वो सब यहाँ आ चुके हैं। इस पूरे कॉरिडोर में इतने बड़े बड़े डेवलपर्स के बीच में आप भी, वीवीआईपी इज आल्सो अ लिस्टेड डेवलपर, अपने काफी बड़ा डेवलपर है। व्हाट इज योर यूएसपी विच यू टेल पीपल कि व्हाट यूएसपी ब्रिंग, व्हाट वीवीआईपी brings to Noida extension that is different from the other developers that are bringing to this particular area? देखो, taking into consideration our legacy, we are committed towards our delivery, as I told you. That's the vision of our chairman, sir. Or taking into consideration the kind of product that we are coming up with right now in Sector 12 of Great Noida West, VVIP addresses, the kind of specification that we are offering, I think it is at par with the bestest of the project across NCR, Gurgaon, Delhi, and Noida. And after my experience, I can say that such a product is not at all available in this market, at least in this cost. So I think that's why I call this product a matchless offering by VVIP Group. Okay. So your quality and your sizes, you are saying that what makes See, you different? और अगर आप ग्रेट नोएडा वेस्ट की एक ज्योग्राफी में जाएंगे तो आपको दिखेगा ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स जो हैं यहाँ पे वो लगभग 2,500 स्क्वायर फीट तक खत्म हो जा रहे हैं, Okay. है ना। हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं 3,000 स्क्वायर फीट से, यू नो, Okay. एंड देन वी आर गोइंग अप टिल 8,000 स्क्वायर फीट ऑफ अ पेंट हाउस ऑल्सो। तो हम लोग जिस जेंट्री को, हम लोग जिस जॉनर ऑफ सोसाइटी को ये केटर कर रहे हैं, that is a very niche segment of society that we are catering this project to, and I think like-minded people would only be buying in this project because यहाँ पे हमारे जितने allottees हैं by far they are either into this IT or are some doctors, are some big businessmen who are having their establishments around this sector, this area only. लास्ट हार्ड क्वेश्चन जो मुझे आपसे पूछना है कि दिस इज फॉर यू, दिस इज नॉट फॉर वीवीआईपी. I respect you have to bring bookings to this company and I respect your work that you put inside. But is there anything about the project which you feel कि मुझे वो बतानी चाहिए जो नॉर्मल किसी क्लाइंट के सामने आप नहीं बोलते, या नॉर्मल आप नॉर्मल कॉन्वर्जेशन में यू नेवर टेक दैट पॉइंट अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आउट, बट इनसाइड समवेयर यू नो कि यार दिस पॉइंट एग्जिस्ट इन दिस प्रोजेक्ट, कि अगर ये पता लग गया तो ये गलत हो सकता है या फिर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है या फिर समथिंग. I totally respect your thing here, but I still want to know that one thing कि जो ऐसी है जो अभी पता नहीं है लोगों को, बट यू शुड फील दैट इज योर ड्यूटी कि अगर कोई यहाँ से कुछ खरीद रहा है मेरे थ्रू, कोई चीज यहाँ पर साइन होके जा रही है, तो उसे ये पता होनी चाहिए. बहुत अच्छी बात आपने पूछी यश भाई अगेन. सी, मैं आपको अगेन आई वुड रिएटरेट द सेम थिंग कि हमारी मैनेजमेंट से हमको जीरो प्रेशर है. दैट इज वाई वी डोंट टेक एनीथिंग टू अस. हम लोग कोई भी ऐसी चीज अगर है भी, कोई ऐसी चीज इस प्रोजेक्ट के अंदर है ही नहीं जो कि हम हमारे को ये लगे कि यार ये चीज और होती तो कैसा होता, या अच्छा होता या बुरा होता. This project is devised, this project is designed so beautifully with everything into so detail that we take pride in explaining this project to each and every one of our potential buyers. There is, मुझे नहीं लगता एक भी कोई ऐसी चीज है जिसके लिए वे हम कभी भी मन में ये सोचे, हमारी पूरी टीम कभी ये सोचे कि यार ये चीज मेरे को छुपा के चलनी है, ये चीज अगर मैंने बता दी तो क्या होगा. Because every damn feature, every single element of this project is so beautiful and so thoughtfully designed that we proud putting it across to our customers. There is no such thing that you ask for कि कोई ऐसी चीज अगर है, there is no such thing by God's grace, and I think we all of our team,
feel so proud in explaining each and every feature to our customers. तो मतलब अकॉर्डिंग टू यू दिस इज अ नो फ्लॉ प्रोजेक्ट. दिस इज अ टोटली मुझे लगता है कि मेरी पूरी रियल एस्टेट जर्नी में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट्स और विच हैज बिन थॉटफुली डिजाइन. जब मेरी पहली बार हमारे चेयरमैन सर से मेरी मीटिंग हुई इस प्रोजेक्ट के बारे में, उन्होंने बताया मुझे कि कितनी बार इस प्रोजेक्ट की स्कीम को रिजेक्ट किया गया, कितनी बार इस पे रीवर्किंग करी गई, कितनी बार इसके ऊपर हमने मीटिंग बिठाई, कमिटीज बिठाई, आर्किटेक्ट्स के बैक एंड फोर्थ मीटिंग हुए. उसके बाद देन वी केम अप विद द final idea of devising this project. So all the due diligence was done. Then thereafter only this project was finally devised and came into the paper. ओके सो हम अपने पॉडकास्ट के एंड की तरफ चल रहे हैं. अब मेरे पास 2 बड़े क्वेश्चन बचे हैं जो मुझे आपसे पूछने हैं. देन वी विल बी हैविंग अ रैपिड फायर. वो तो फटाफट से होगा. एंड टिल नाउ यू आर गोइंग वेरी गुड. काफी मतलब कई रिस्पॉन्स ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे भी अंदर से थोड़ा सा चेंज किया है, मेरा पर्सपेक्टिव शिफ्ट किया है टुवर्ड्स दिस वीवीआईपी ग्रुप. और जो चीज मुझे भी अभी तक जो मार्केट में मैं सुनता आ रहा था, तो थिंग्स हैव चेंज पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली बोथ. इट्स नॉट लाइक कि मैं बहुत पॉजिटिवली इम्प्रेस हो चुका हूँ वीवीआईपी से, बट हाँ नाउ आई फील आई हैव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वीवीआईपी जो एक बायर को भी शायद पता होगी, तो इट वुड हेल्प देम टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. विल इंडियन रियल एस्टेट एवर बी ट्रांसपेरेंट? It has already become very transparent. I think post RERA, you cannot misguide your customers. You cannot miscommunicate your customers. You cannot mislead any customer through any of your misinformations. So Indian real estate is very trustworthy now. हर डेवलपर बहुत क्लियर है. हर डेवलपर अपनी सारी इंफॉर्मेशन को रेरा पे उसके लॉन्च होने से पहले ही अपलोड करवा देता है. So it's only about the customers whether they are going to those details or not. But I think it's already very crystal clear and very transparent in terms of whatever they are selling. ओके आई गेट योर आंसर. बट जैसे लेट सपोज अगर मैं कस्टमर हूँ, मुझे आपका या फिर मुझे किसी डेवलपर का एस्क्रो अकाउंट देखना है कि कितने पैसे हैं उसमें, मुझे उसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट देखनी है, तो ये चीजें तो रेरा पे नहीं डायरेक्टली मिल सकती हैं आपको. तो क्या हम उस लेवल ट्रांसपेरेंट हो पाएंगे जैसे दुबई है? दुबई के अंदर ट्रांसपेरेंसी अगर हम देखा जाए तो इंडिया से थोड़ी बेटर है कि बंदे को दे हैव एप्स एंड एवरीथिंग, उस पर वो काफी हद तक लाइक थ्रू एंड थ्रू उसको सारे प्रोजेक्ट की सारी डिटेल मिल जाती है. बट अभी मतलब रेरा हैज मूव्ड द नीडल, बट इट हैज नॉट कंप्लीटेड द फुल सर्कल ऑफ दैट क्लॉक. कि थोड़ा सा वक्त को वो आगे लेके गए हैं अपनी सुई से, पर वो पूरी क्लॉक को अभी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं. सो दिस इज माय क्वेश्चन कि वो पूरा क्लॉक कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा जब हमें ऐसा पता लग जाएगा कि एवरीथिंग इज वेरी ट्रांसपेरेंट. एंड विल विल द इंडस्ट्री, जो हमारी डेवलपर इंडस्ट्री है, विल दे वॉलंटरी मूव अपवर्ड्स टुवर्ड रेरा और टुवर्ड द रेगुलेटरी बॉडी टू मेक दिस थिंग वेरी ट्रांसपेरेंट? तो डेवलपर्स खुद अपने एंड से कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं कि यार ये बायर्स को इशू आता है और रेरा को ये भी चीज डालनी चाहिए. तो as a developer or as a VVIP guy, do you guys have that thing? देखो मुझे लगता है कि आज की डेट में रेरा ने ट्रांसपेरेंसी की सारे जो पैरामीटर्स है उनको मैच किया ही हुआ है ऑलरेडी. बट जैसा आपने बोला कि भाई किसी कस्टमर को ये एक्सेस नहीं है कि वो एस्क्रो अकाउंट की डिटेल को कर सके, बट रेरा को वो एक्सेस है. इफ कस्टमर आस्क रेरा, रेरा विल टेक द डिटेल्स एंड विल शेयर अक्रॉस टू द कस्टमर्स. सारी चीजें हैं. देयर इज द मतलब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कि विच चैनल टू टच टू गेट द इंफॉर्मेशन, ओनली दैट इज लैकिंग. दैट्स इट. कस्टमर पहले बहुत इन्फॉर्म्ड हो चुका है, बट यस उसको अगर ये भी पता पड़ जाए कि यार अगर मेरे को एस्क्रो की डिटेल चाहिए तो हाउ टू गो अबाउट इट, मेरे को किस चैनल को टच करना पड़ेगा कि वो डिटेल मेरे पास आएगी, वो डिटेल भी अवेलेबल है. कुछ भी आज की डेट में छुपा हुआ नहीं है. आपको अगर ये भी देखना है कि किस डेवलपर ने कहाँ पे कितना पैसा खर्च किया, उस पैसे का जो उसके एस्क्रो अकाउंट में आया, वो डिटेल आप ले सकते हैं. अच्छा, तो ये डिटेल लाइव है? मतलब अगर मैं एज सारी अ नॉर्मल बायर, मुझे ये सब पता लग जाएगा कि क्या एस्क्रो डिटेल्स हैं, कितना पैसा है? आप रेरा से ये चीज मांग सकते हैं. रेरा तो रेरा will की provide वेबसाइट you. पर डायरेक्टली कैन आई गो एंड सर्च फॉर दिस, या फिर मुझे कोई पर्टिकुलरली देयर इज सम ईमेल आईडी है जहां मुझे मेल करना होगा? मतलब डू यू हैव यू एवर बीन थ्रू दैट प्रोसेस? No, see, I haven't been through because being on
other side of the table, means I never went for this. But yes, there have been instances where people were fussy about that also. They went to that detail, so I got to know through some people that yes, this also takes place. But yes, today's RERA is so much empowered. They keeps a check, they keeps a monitoring on whatever is happening financially into your accounts, into your organization, where all you are spending. So they keep an eye on you, and I think they got no hitches to share across to their customers also. In case you are some customer, you can reach out to RERA. There are email IDs, there are toll free numbers, there are customer care officials in RERA, state RERA offices. You can reach out to them, and then you can ask them, you can put across your query. They will ensure that you get your answer. They will go to any extent. Okay, so this question was directly for the viewers. जिसको कुछ भी जानना है for any developer or any project or any area, you can directly go and search it on RERA. If it is RERA certified, आपको उसकी सारी information वहीं मिल जाएंगी. Okay, so moving forward with the last question of this session, बहुत लंबा session चला गया, and it is also a very hypothetical question. Let's suppose it is October 2029. VVIP addresses अपने possession time पर पहुंच गया है, and because of some issue या कुछ भी ऐसा हुआ, this project gets delayed. I am a buyer जिसने 3 करोड़ रुपए लगाए और ये प्रोजेक्ट डिले हो गया, and you are still the AVP of this particular group, जिसने आप मेरे को बोला कि यश, ट्रस्ट मी, बाय दिस प्रॉपर्टी, बाय दिस प्रोजेक्ट, आपकी जितनी नीड्स हैं वो यहाँ फुलफिल हो रही हैं, एंड आई डोंट थिंक कोई और बेटर प्रोजेक्ट आपके लिए, और आपकी बातों में मैंने विश्वास करा और मैंने साइन करे, पैसे दे दिए, और आज ये डिले हो गया. So what responsibility as an AVP of VVIP group you take on yourself, and how do you think you are going to manage this situation? पर्सनल कैपेसिटीज के बारे में आप पूछ रहे हैं कि भाई मेरी पर्सनल कैपेसिटीज में व्हाट आई वुड बी डूइंग इन सच अ सर्कमस्टांस. तो मैं यश भाई आपको दो भागों में इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा. पहला तो इन केस इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लिक्विडिटी और आपको कोई पैसा, जैसे आपने बोला कि यार मेरे को कहीं यूज़ करना था तो अभी पदेशन नहीं हो पा रहा, मैं इसकी लिक्विडिटी कैसे करूँगा. तो पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जो पदेशन की कैपिटल एप्रिसिएशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो अक्रॉस आई थिंक 4 इयर्स का वो था, वो अब 2 ईयर में ही योर गोल वुड बी अचीव्ड, रेस्ट अश्योर्ड. मतलब इस प्रोजेक्ट के लिए मैं आपको ये आश्वासन दे सकता हूँ कि आपके जो कैपिटल एप्रिसिएशन के गोल्स हैं वो बिफोर हैंड मीट हो चुके होंगे. दूसरी चीज, अगर पदेशन मीट तय समय पे नहीं होता, उस केस में मैं क्या करूंगा. सी, दोनों चीजें. पहले तो मैं आपको वजह बताऊंगा ये क्यों नहीं समय पे प्रदर्शन हो पाया. दूसरा, मैं आपको क्लियर डेट बताऊंगा कि अगर ये अभी नहीं हो पाया तो ये कब होगा. इस चीज की जिम्मेदारी मैं लेता हूं और मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा कि रेस्ट अश्योर्ड, अगर पहल तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे प्रदर्शन डिले हो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया मैनेजमेंट की सिर्फ एक ही विजन है कि बिफोर टाइम डिलीवरी विद ऑल द कमिटमेंट दैट वी हैव गिवन टू कस्टमर्स. पहले तो ऐसा हो नहीं सकता. सेकेंडली, अगर ऐसा होता है तो देयर वुड बी सम प्रॉपर रीजन बिहाइंड दैट, जो कि हम आपको कन्वे करेंगे. दूसरा, उसकी तय समय सीमा क्या होगी, यू वुड बी कम्युनिकेटेड प्रॉपरली विदाउट एनी हिचेस एंड ग्लिचेस. यू वुड बी इन्फॉर्म्ड कि इसकी प्रॉपर दूसरी डेट क्या है. दैट इज, आई कैन अश्योर यू ऑन माई पर्सनल फ्रंट. I take full responsibility and I also assure you कि कोई ambiguities नहीं होंगी, हर चीज क्लियर और ट्रांसपेरेंट होगी. Okay, so you say you are taking the full responsibility of being answerable to this and updating a client beforehand कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किस वजह से हुआ. क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा है कि एक बार सेल जब तक नहीं होती तब तक लोग कॉल भी उठाते हैं, प्यार से बात भी कर रहे होते हैं, बट एक बार जब सेल हो गई, सारा पैसा चला गया, उसके बाद दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि कोई कॉल पिक नहीं करेगा, साइट ऑफिस पे आ रहे हैं, ऑब्वियसली पता है अगर डिले है तो लोग नहीं मिल रहे कि सर तो यहाँ पे है ही नहीं, सर बाहर गए हुए हैं, वो वाली चीजें होने लग जाती हैं. तो दैट दैट इज द थिंग जो कि बहुत सारे क्लाइंट्स ने फेस करी है बिफोर एंड. ओके, मैं आपका ये वाला आंसर समझ गया, रेरा आ गया है, चीजें चेंज हो गई हैं, बट आपका पर्सनली यू आर टेकिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हर बायर को यू विल बी ट्रांसपेरेंट एनफ टू लेट देम नो द एग्जैक्ट रीजन क्या हुआ है, कब तक ये चीज सॉल्व हो जाएगी, क्यों ये दिक्कत आई थी, एंड यू आर द वन फीलिंग अपोलोजेटिक
कि आपके एंड से अगर वो डिले हुआ है तो यू आर द वन फीलिंग सॉरी एंड अपडेटिंग देम वेरी वेल. So you take this responsibility on you and See, on the behalf of the group only. obviously, see, मैंने आपको बताया ना, इट ऑल फ्लोज फ्रॉम द टॉप. और हमारे यहाँ मैनेजमेंट की जो डायरेक्शन है, उनकी जो इंस्ट्रक्शन है, वो कस्टमर के प्रति आपको निष्ठावान रहना है, कस्टमर के प्रति आपको जवाबदेह रहना है. कहीं भी कोई संशय नहीं आना चाहिए कम्युनिकेशन में. अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट कभी डिले हुआ तो उसके अंदर वी एंश्योर्ड कि कस्टमर्स वर कम्युनिकेटेड प्रॉपरली, सीमलेसली. इसी के आधार पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पहले तो ऐसा हो नहीं सकता. दूसरा, अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो उसमें द काइंड ऑफ मैनेजमेंट वी हैव, आई नो कि व्हाट आई वुड बी आस्क्ड फॉर टू डू. और मेरी पर्सनल जो जर्नी रही है उसके अंदर भी आई हैव बीन वेरी ट्रांसपेरेंट विद ऑल ऑफ माय कस्टमर्स ऑल माय लाइफ. And because this is not only just the product selling and purchasing that we go through, it's also the relationship that we build across ages with our customers. So uske liye the communication is the key, and I think we do it seamlessly. Okay, I totally get your picture on this. So with this, हमारे जो बड़े क्वेश्चन थे, जो जिन्होंने आपको थोड़ा सा आई गेस आपको अपने अंदर भी देखने के लिए मजबूर किया, सोचने के लिए मजबूर किया कुछ क्वेश्चंस ने. सो फाइनली वी आर डन विद दोज क्वेश्चंस. हम अपने लास्ट सेगमेंट पर आ चुके हैं पॉडकास्ट के, अ वेरी फेमस सेगमेंट, रैपिड फायर. इन दिस आई विल बी आस्किंग यू अ क्वेश्चन और आपको उसमें सिंगल वर्ड में यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन. 5-6 क्वेश्चंस रहेंगे एंड लेट्स सी हाउ इट गोज. ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू. नोएडा एक्सटेंशन राइट नाउ, overpriced, fair value or undervalued? Undervalued. Okay. Indian real estate, one word, trustworthy or risky? Super trustworthy. Super trustworthy. Okay. So better 10-year bet, VVIP addresses or diversified equity mutual fund, SIP? Any day VVIP addresses. Okay. Complete this sentence. This is a very basic thing. Complete this sentence. Everyone in real estate says dash, but the honest truth is dash. You have to fill those blanks. Everyone in real estate says dash and the real truth is dash. कि क्या हम बोलते हैं बट उसके पीछे आंसर क्या होता है? See, everyone in real estate, every channel partner, every broker, every developer would ask you. So I will rephrase the line that you just said. Everyone in real estate ask you to buy now, whereas the reality is you buy immediately, because prices are rising every now and then. The clock is ticking every second, every moment. Okay. So you know war is going on, and in 2026, would you suggest someone to buy property after this tensions throughout the world had de-escalated, or would you suggest someone to buy right now in 2026? See, as I always say, and I have already said this into your podcast also, that the best time to enter into real estate is now, today, this moment. If you're planning to buy, just do it right away. Okay. Okay, last question to you and last question for this podcast. If you weren't in real estate, what would you be actually doing in life? Me as a person, Yes. I would be doing QSRs. QSRs. Yeah, it's quick serving restaurants, like you see McD's, like you see Burger Kings, so something Okay. of that sort. Okay, so you are someone who is into this food and Passionate about, passionate yeah, about yeah, food. yeah, eateries and Okay. eatables. This and, brings us to a common ground. I'm a food technologist by profession, and you Oh. have this passion for food. yeah, So I guess food brings everyone together. Be Correct. it any human being, food brings you together. correct. But there's a basic necessity, see. Uh, And see, roti, kapda, makan, वो पहली है, तीसरी है. Okay, so this was Mr. Tarun with us. हमने काफी बातें करी, काफी कुछ रियल एस्टेट के बारे में मेरा ज्ञान का भंडार बढ़ा. काफी चीजें आपको भी पता लगी होंगी कि अच्छा दिस इज ऑल्सो व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट वीवीआईपी. सो मतलब अगर आपके दिमाग पे कुछ पहुंचा तो आई विल बी फीलिंग गुड कि हाँ मेरी रिसर्च थोड़ी सी मार्केट No, में. it was very insightful instead, for us also.
every question that you ask, I think, has been enlightening also. It's not just only about what you ask. It it is also about the perspectives, that you gave us today. In मुद्दों पे भी, in parameters पे भी, you should be thinking, you should be ready with your answer, because कि आपने जो survey किया, because I have been seeing you that you were sitting from last so many days outside, you was talking to customers. So उनका जो निचोड़ आज मैं देख पा रहा हूँ कि जो customers के जो आपने सवाल पूछे हैं, I think these critical questions people don't ask us directly, but they go via channels. So I think you answer directly, and then I think it would be very helpful for those people also who are seeking for these questions to be answered. Okay. Okay, thank you, Mr. Tarun. Thank you for joining us. And this was VVIP Group, Mr. Tarun, AVP Sales of VVIP Group. And nextly, we will be again covering VVIP Group very soon, maybe after a year, maybe after 2 years. We will see the answers which Mr. Tarun gave us. Are those answers still standing still, or are those answers lagging behind? We will be seeing this after 2 years. That would be a test for Orange Advisors and for Mr. Tarun as well. Meanwhile, this was us. This was our honest advice on this project and on this area. See you guys very soon in another podcast. Tarunji came here today, and I think he gave fairly honest answers on some of the questions than other. You saw the moments, you make the call. And that is the entire point of the channel. My job role is not to tell you where to invest. My role is to make sure the people asking for that money are asked the right questions on camera, on record. And if you want to verify VVIP addresses, in the link you will find out the RERA number. Just go to uprera.government.in, the most honest source available, and find it out yourself. If you want to have conversation about any project in this corridor without any sales pressure or without any hidden agenda, then the link is in the description. You can connect with us. Orange Advisors makes you the promise that we will answer the question you want to hear and not what we want to say commercially. Subscribe if you believe real estate conversations in India need to be more honest. Episode 2 is already lined up. Another developer, another set of questions you have never heard being asked on camera before. Until then, use your judgment always.